continue tomorrow and the day after. देवी और सज्जनों, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। इस शुभ Institute is celebrating its centenary year. ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು ಜಮಖಂಡಿ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. This institution is basically focusing on the research in the field of philosophies and religions of the world. It is not advocating any one religion, one faith or one philosophy. The child of God's creation, who is still nameless and religionless, come forward to think about the ultimate reality was the basic theme of this particular institution. In 1952, the institution has been shifted to Belagavi. And in 1964, the ex-president of India, B.D. Jatti sir, then he was finance minister of Karnataka sir, who laid foundation stone to the headquarter building of academy. And in 1965, Gurudev in fact passed away in 1957. In 1965, S. Radhakrishnan, then the philosopher king of India, was a great philosopher of international repute, only on writing a letter came to Belgaum for inauguration of the headquarter building of ACPR.
the main theme of this particular institution is one world, one God, one humanity. That is the basic theme of this particular institution. ನಮ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2024ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅಲ್ಲಿಂದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆರೆವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಅವರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುಣೆ, ಸೋಲಾಪುರ್, ನಿಂಬರ್ಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಉಮದಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒನ್ ಗಾಡ್, ಒನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಥೀಮದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Throughout his life, Gurudev is popularly known in the international philosophers world through his writings. The greatest writing of Gurudev Ranade is he has written mystical literature of all the saints of India, including European saints and also Greek saints. ಅವರು DC ಪಾವಟೆ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂತರ ಪರಮಾರ್ಥ ಪಥ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಹೊರಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ DC ಪಾವಟೆ ಸರ್ಸ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಎ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋವಿಂದ ದೇವಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಡೆಂಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು. ಆಚಾರ್ಯ ಗೋವಿಂದ ದೇವಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುರುದೇವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ R.D. ರಾನಡೆ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ he had assured me that he is going to visit our institution and going to deliver 3 days lecture. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಮತ್ತು ಛಲಗಾರ. ಕನಸು ಕಂಡದ್ದನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿದ್ರು. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಯಾಕದು ಕರೆಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬರಬೇಕಂದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಚಿತ್ರಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿನ್ಗೌಡ್ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ex-MLA ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕೌಟಿಮಠ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನೋದ್ ದೊಡ್ಡನ್ ಅವರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಇದೆ. ಈಸ್ ಎ ರೆವರೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. Swami Sri Govinda Devgiri Maharaj is known for his profound discourses on the Ramayana, Bhagavad Gita, Mahabharata, Jnaneshwari and other ancient scriptures. Treasurer of Sri Rama Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust, he played a vital role in the sacred Prana Pratisthana ceremony of Bhagavan Sri Rama in Ayodhya, where the Prime Minister of the country himself broke his 11-day fast at Swamiji's hands. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ he is also Vice President of Krishna Janmabhoomi Trust, Mathura, contributing to the preservation and celebration of Sri Krishna's legacy.
He is born as a Kishore Madana Gopala Vyasa, known as Kishore Vyasaji. In this part of the country, sir, you are known as Kishore Vyasaji. That is the wonderful name of in Maharashtra. Swamiji was blessed with a deep spiritual lineage, and he has pursued rigorous training in Tattvajnana, Vedas and Darshana Shastra. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ by using the modern technology ಗೀತಾ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೀತಾ ಪರಿವಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ through Gita Parivar he has created the world's largest online platform for Gita learning, offering teachings in 12 Indian languages and English to millions in over 180 countries. In 180 countries. His institute has honored thousands of Gita students with the title of Gita Vrati, creating a spiritual revolution in homes across the globe. ಅದರಿಂದ ಮೂಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ, ಭಾರತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. In every country we could able to see so many philosophers, so many spiritual teachers. But why India is great ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತರು, ಮಹಾತ್ಮರು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆಗಿ ಹೋದ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद. Deep reverence, that is Guru Vandana. ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಮಾನ್ಯ ಮಾರುತಿ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬೇಕಂತ ಜೇಟ್ಲಿಯವರು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನೀವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ತಂದದ. ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಿಂತ ಶ್ರೀಗಳು ನಮಗೇನು ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕದ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಗುರುಗಳವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಅವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. 3 2 1 go. 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 3 2 1
मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः माधुर्य सकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरुः पातु मां सदा आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। आज मैं अपने को अत्यंत आह्लादित अनुभव कर रहा हूं कि आज उस महाविभूति के प्रति त्रिदिवसीय प्रवचनमाला के रूप में मैं वांगड़ पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँच सका। मुझे वो समय याद है जब इस शताब्दी के आरंभ में परम श्रद्धेय माननीय मोहन जी के साथ में मुझे यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन संन्यास धर्म के पालनार्थ गुरु पूर्णिमा के पश्चात कुछ समय तो भी गंगा जी के तट पर बिताना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, और उस मर्यादा के पालन के कारण मैं नहीं आ पाया, लेकिन आने की मेरी तीव्र इच्छा थी और आखिर मैं यहाँ पर पहुँच सका, इसका मुझे समाधान है। तीव्र इच्छा इसलिए थी कि पूज्य गुरुदेव के बारे में हमारे अंतःकरण में निरंतर नितांत श्रद्धा भाव रहा है। हमारी भारतीय परंपरा और उसमें भी जो दार्शनिक परंपरा है, उस दार्शनिक परंपरा का एक सही एनालिसिस, एक सही विश्लेषण यदि विश्व के सामने प्रथम बार किसी ने रखा हो तो वे गुरुदेव रानडे जी रहे। उनका कंसेप्चुअल सर्वे ऑफ ओपिनिक फिलोसॉफी यह ग्रंथ स्वयं मुझे उनके शिष्य और हमारे प्राध्यापक डॉक्टर एस.वी. पंडित जी ने दिया था, और उनके पास हम कंपैरेटिव फिलोसॉफी का अध्ययन कर रहे थे। वास्तविकता ये थी कि उस समय उस ग्रंथ को ठीक से समझने की भी पात्रता हमारी नहीं थी, लेकिन उसके जो कुछ आयाम हम समझ सके उस पर इतना तो समझ ही लिए कि ऐसा ग्रंथ अभी तक भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा नहीं गया। That's his greatest contribution. The approach he had chosen was quite different. और इसलिए पूज्य पंडित जी के कारण हम लोगों को गुरुदेव का, उनके साहित्य का परिचय हुआ। उस परिचय के साथ साथ अपनी जिज्ञासा से मैंने जो कुछ उनके बारे में वाचन किया, मेरा उनके लिए अत्यंत श्रद्धाभाव निरंतर वृद्धिंगत होता गया, और इसीलिए शताब्दी के कार्यक्रम में मैं स्वयं निम्बाड़ में उनकी स्मृति में जो प्रवचन हुआ था वो मेरा हुआ था, और मैं उसके लिए समय निकाल करके आ पाया, इसका भी मुझे आनंद रहा था। यहाँ पर आकर के 3 दिनों तक आप लोगों की जो सेवा करनी है वो तो करूँगा, लेकिन जिस प्रकार का रख रखाव गुरुदेव के वांग्मय का और उनकी संस्था का आप लोगों ने रखा है, किया है,
मैं आपका अभिवादन कर रहा हूं कि आपने उस परंपरा को अत्यंत व्यवस्थित रीति से केवल संभाल करके नहीं रखा, तो उसका गौरव कैसे बढ़ता जाए इसकी योजनाएं भी आपने की और आप लगातार उसमें लगे हुए हैं। वास्तव में यही कार्य होता है। एक महापुरुष आता है, अपना कार्य करके चला भी जाता है, लेकिन उसके पश्चात उसकी परंपरा उसकी महानता को कितना संगोपित रखती है, कितना संभालती है और कितना विस्तारित करती है, इसी के कारण उसका उनकी दृष्टि से गौरव बढ़ता है और समाज की दृष्टि से, देश की दृष्टि से सच्चा लाभ होता है। नहीं तो ऐसे महान कार्य कभी कभी विस्मृति के गर्त में भी चले जाते हैं और ध्यान में नहीं आता है। आइए हम लोग अब इस सुंदर प्रांगण में, अभी आदरणीय कोरे जी का परिचय कराते समय मुझसे कहा गया कि ये सारा उनका निर्माण किया हुआ है, तो जिनका कार्य इतना महान है उनकी सोच भी कितनी महान होगी और कैसे सब लोगों को साथ में लेकर के वे इस कार्य को इतने दीर्घ समय तक करते आए हैं। मैं उनका भी अत्यंत हृदय से आदर करता हूँ। कृष्ण नीति, यह शब्द एक बार मेरे द्वारा अचानक उच्चारित हुआ। घटना इस प्रकार की थी, प्रतिवर्ष मैं मुंबई में व्याख्यान देते रहता हूँ और एक बार जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो संयोजक वहीं पर मिल गए। उन्होंने कहा इस समय का विषय क्या रहेगा? मैंने कहा क्या होना चाहिए? तो उनमें से एक ने कहा चाणक्य नीति। मैंने कहा चाणक्य नीति नहीं, चाणक्य से मेरा बहुत लगाव है, आदर भाव है, लेकिन जब एक मिक्स्ड ऑडियंस के सामने बोलना होता है तो उन्हें कुछ आध्यात्मिक खुराक भी मिलनी चाहिए। मैंने कहा चाणक्य में वो आपको मिलने वाली है नहीं। जैसे चाणक्य नीति नहीं रखी तो उन्होंने कहा कि फिर क्या रखेंगे? एकदम मेरे मुख से आ गया कृष्ण नीति। अब मैं कृष्ण नीति बोल तो गया, लेकिन मैंने कृष्ण नीति का कुछ विचार नहीं किया था, बोल गया। उसके पश्चात मैं मुंबई से पुणे के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में मैं विचार करने लगा ये नीति क्या होती है। यही से मेरा सोचना आरंभ हो गया, क्योंकि मैंने टॉपिक तो उनको दे दिया था। अब फिर मैंने सोचना आरंभ किया कि नीति क्या होती है। मेरे सामने भगवत गीता का एक वाक्य आया, नीति रश्मि जिगीषताम। भगवत गीता के 10वें अध्याय में जहाँ विभूति योग है, वहां पर भगवान ये कहते हैं कि जो लोग विजयेच्छु हैं, जिनके अंतःकरण में जीतने की इच्छा है और जो हर परिस्थिति के ऊपर मात करना चाहते हैं, परिस्थिति में विजयी होकर के निकलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के भीतर भगवान कहते हैं मैं नीति के रूप में निवास करता हूं। अब नीति रश्मि जिगीषताम, इसके माध्यम से जो मुझे ध्यान में आया तो मैंने सोचा कि ये विजय क्या है। हर विजयेच्छु व्यक्ति को विशिष्ट नीति का अवलंबन करना चाहिए, तब वो विजय प्राप्त करता है। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ पर राजनीति आदि अनेक शब्द है, लेकिन अब विजय, सच्ची विजय क्या है, इस बात को भी थोड़ा सोचना चाहिए। हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में विजयी हो जाते हैं। हम परीक्षा देते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, विजयी हो गए। ये तो छोटे छोटे विजय के तरंग है, लेकिन सच्ची विजय क्या है? मुझे अब मैं उसी शब्दों में बताऊं कि नहीं बताऊं, ये मेरे सामने थोड़ा प्रश्न है, लेकिन बतला देता हूं। मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ में एक बार चर्चा कर रहा था और चर्चा में उन्होंने मुझे एक बात बताई। किसी ने डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए बात की और एक, और मैं दूसरा नाम लूंगा नहीं, उनके बारे में बात की। इन दोनों में बड़ी पर्सनैलिटी कौन है, ऐसी चर्चा चली। अब ऐसी चर्चा चलते समय दत्तोपंत जी ने एक बात कही
वर्तमान काल में विशिष्ट वातावरण में विशिष्ट प्रकार का ग्लैमर निर्माण करके लोकप्रिय हो जाना, ये एक बात है, ये एक विजय है। लेकिन सच्ची विजय वो है जो मनुष्य अपने भविष्य में अपने कार्य की कितनी लंबी रेखा खींच सकता है, जिसकी शैडो, जिसकी छाया भविष्य काल के ऊपर जितनी लंबी जाती है वो उतना विजयी कहलाना चाहिए। और उन्होंने प्रश्न पूछा, ये बताओ जिनका नाम आप ले रहे हैं उनकी ध्येयवादिता को लेकर के आज कितने लोग समर्पित हैं? तो उन्होंने कहा कि लगभग कोई नहीं है। दत्तोपंत जी ने कहा, डॉक्टर साहब की ध्येयवादिता को लेकर के आज लाखों लोग अपना जीवन अर्पण करने के लिए सिद्ध है, ये उनकी सच्ची विजय है। भविष्य काल के ऊपर मैं कितना परिणाम कर सकता हूं, भविष्य काल को निर्माण करने में मैं अपना योगदान कितना दे सकता हूं, भविष्य काल में मैं लोगों के अंतःकरण में अपना स्थान कितना प्राप्त कर सकता हूं, और वह स्थान कितने लोगों के भीतर, ऐसी बात नहीं, कितने प्रकार के लोगों के भीतर और कितनी गहराई के साथ स्थापित करता हूं, इसके ऊपर व्यक्ति की सच्ची विजय निर्भर करती है। यह विजय की सच्ची कसौटी है। कालो ही दुर्तिक्रमा, ये काल ऐसा है, ये काल सबको निगल जाता है। हम देखते हैं कि अब सोचो तो 10 वर्ष पहले जिन लोगों की सत्ता, जिन लोगों की कीर्ति, जिन लोगों का दबदबा आसमान छू रहा था, आज उनकी क्या अवस्था है? 20 वर्ष पहले जो बड़े बड़े कहलाते थे, आज वे कहां चले गए? जो अत्यंत प्रभावी इस प्रकार के लगते थे, उनको आज कौन याद करता है? ये सब लोग अपने अपने समय में कितना भी अपना नाम कमाए होंगे, किसी प्रकार से भी कमाए होंगे, लेकिन उनको याद करने वाला भविष्यकालीन समाज कौन है, और उस समाज के अंतःकरण में उनके प्रति आदर किस प्रकार का है। और जब इस प्रकार से हम चिंतन करते हैं तो संपूर्ण हमारे देश का इतिहास, संस्कृति का इतिहास देखते समय एक बात मेरे ध्यान में आती है कि सर्वाधिक विजयी यदि कोई आज है तो वह भगवान श्री कृष्ण है। 5000 वर्ष भगवान को धराधाम से निजधाम जाने के लिए हो गए। इन 5000 वर्षों में आप जरा सोचिएगा, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण के विचार, भगवान श्री कृष्ण की जीवन शैली इनने लोगों को कितना प्रभावित किया है। कितने भक्त उनके संसार में हम लोग देखते हैं आज। और यह सब जो हम देख रहे हैं, आज से तो हिमाचल ही केवल नहीं, आज तो अनेक संस्थाओं के माध्यम से पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण का सर्वत्र ऐसा बोलबाला है। और भगवान श्री कृष्ण के और हम जब देखते हैं तो छोटे बालकों से लेकर के वृद्धों तक, सामान्य भाविकों से लेकर के अत्यंत बड़े दार्शनिकों तक, और सभी प्रकार के लोगों में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जो दबदबा है, जो आदर है, वह एक अपना अनोखा स्थान रखता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह स्थान कैसे प्राप्त किया? ऐसे ही तो कोई प्राप्त नहीं करता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा। चेतक मुझे याद था। चार 400 वर्ष हो गए हैं, उस घोड़े को हम नहीं भूले। कुछ तो होगा, अश्व तो अनेक हुए, कुछ तो उसने किया होगा। ऐसा क्या भगवान श्री कृष्ण ने किया जो आज से तो हिमाचल भारतवर्ष, आप किसी भी प्रदेश में जाइए, आप किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले में जाइए, आप किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी गांव में जाइए, कृष्ण भगवान का नाम पता नहीं है, ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं। और केवल नाम पता नहीं है इतनी बात नहीं है, तो उनके लिए अपार आदर, उनके प्रति श्रद्धा का भाव और उनके ग्रंथों के अध्ययन की ललक, ये सब हम लोगों में क्यों निर्माण हो गई? इसको जब मैं सोचता हूं, मैं आयु के 17वें वर्ष से श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते आया हूं। भागवत का सप्ताह सबसे पहला मैंने जो किया था, उस समय मेरी अवस्था 17 वर्ष की थी। तब से मैं ये करते आया हूं।
लेकिन जब मैं इस प्रकार से सोचता हूं तो मेरा ध्यान श्रीमद् भागवत के एक विशिष्ट श्लोक की ओर जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण का जहां पर वर्णन आरंभ होता है वहां का नहीं, उसके पूर्व का है। स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर् वाक्यैर् विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। भगवान का चित्र आरंभ होता है दशम स्कंद में। यह श्लोक है नवम स्कंद के अंतिम अध्याय में। लेकिन इस एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। हाउ कुड ही वन सो मेनी हार्ट्स? स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर् वाक्यैर् विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। पहले थोड़ा सा इस श्लोक का चिंतन करेंगे तो अगला चिंतन क्या होना है वो अपने आप पता चल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते समय भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं मूर्त्या सर्वांगरम्यया। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? वे कहते हैं सर्वांगरम्य है। सर्वांगरम्य होना बहुत कठिन बात है। कोई आकृति में ठीक है, स्वभाव में ठीक है नहीं पता नहीं, कोई स्वभाव में अच्छा है, बुद्धि में अच्छा है कि नहीं पता नहीं, कोई व्यक्तिगत चर्चा में अच्छा है, बुद्धिमान भी है, लेकिन लोगों को प्रभावित कर सकता है कि नहीं पता नहीं। ये अनेक प्रकार के पहलू हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के। इन सारे पहलुओं में जिसका कार्य सर्वोत्तम है वो मूर्तियां सर्वांगरम्यया। सर्वांगरम्य मूर्ति, ये जो सर्वांग है उनके यहां पर तीन भाग करके हम लोगों को बतलाए गए। स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर्, भगवान श्री कृष्ण लोगों को जब भी दिखते हैं कैसे दिखते हैं, वर्णन सुनो। देखो, यदि मुझे अपने जीवन में सभी लोगों को प्रभावित करना होगा, अपने पास उन लोगों को रख करके उनसे महान कार्य भी कराना होगा और उनको ये कार्य करते समय ऐसा भी लगना चाहिए कि ये कार्य करते समय मैं किसी प्रकार से उगता नहीं रहा हूं, तो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? नीति का अर्थ होता है पैटर्न ऑफ बिहेवियर। मैं कैसे व्यवहार करता हूं, और ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर यह अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन एक रस नहीं होता है। हम हैं टू बी रिलेटेड, हम हैं, हमारे सबके साथ संबंध है, सबके साथ हमारे जो संबंध है इन सारे संबंधों में कुछ अंतर है। उस संबंध के अनुसार उस व्यक्ति के साथ अलग अलग परिस्थितियों में उत्तम व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूं, इसे कहते हैं नीति। द पैटर्न ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। अब इसमें भगवान का पहला वर्णन आता है स्निग्धस्मितेक्षितोदारैर्। स्निग्धस्मितईक्षित, क्या वर्णन करूं, कैसे अनुवाद करूं? द स्वीटेस्ट स्माइल रेज टू इंफिनिटी। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के ऊपर निरंतर एक सुंदर हास्य विराजमान है। निरंतर जहां भी है वे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते तो हम भी हैं कभी कभी। कभी कभी तो बेचारे फोटोग्राफर को कहना पड़ता है प्लीज स्माइल। और भगवान श्री कृष्ण का क्या है? कुरुक्षेत्र के प्रांगण में दोनों सेनाएं खड़ी है और अत्यंत गंभीर प्रसंग उनके सामने खड़ा है। सबसे भरोसे का व्यक्ति है, योद्धा है अर्जुन। उसने धनुष बाण धर दिए हैं और उस समय भगवान प्रसन्न होकर के मुस्कुरा रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इन
विषीदम वचः कथम भूतम अर्जुनम विषीदन्तम अर्जुनम कथम भूतश्च भगवान प्रसन्न प्रहसन स्निग्ध स्मितेक्षितोदारे भगवान का स्मित वो भी कैसा स्निग्ध प्रेम भरा स्मित। मुझे धनुष महाराज के शब्द याद आते हैं, शब्द बुढ़ापा धरे कृपा आदि, शब्द बाद में निकलेंगे लेकिन पहले ही उनका प्रेम प्रकट हो जाता है। स्निग्ध स्मितैः एक बात उदारे वाक्य ही, उनका हर वाक्य उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द ऐसा अतुलनीय है। देखो जहां तक संभव है मैंने कृष्ण चरित्र का अध्ययन करने का प्रयास किया है, कहीं पर भी ओछी भाषा कृष्ण भगवान की है नहीं, कहीं पर भी तुच्छता दर्शक में किसी के साथ बात करते नहीं, वे चिढ़ जाते हैं, उनको रोष भी समय पर आता है, उसमें भी उन्होंने कभी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। बात में देखेंगे हम विस्तार से। उनकी वाणी उदार वाणी स्निग्ध स्मिते, अरे वो दुर्योधन के साथ बोलते समय भी महाभारत में वर्णन उवाच मधुरम वाक्यम, भगवान मधुर वाणी से दुर्योधन को देख करके बोल रहे हैं। मधुरम, दुर्योधन की ओर देख करके कृष्ण भगवान मधुर वाणी बोले, बड़ा कठिन काम है, लेकिन वो उनको याद है। स्निग्ध स्मितेक्षितोदारैर् वाक्यैः, उदारैर् वाक्यैः। अच्छा, मीठा बोलने वाले, प्रेम से हंसने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं हमें, और ऐसे लोग हम पर्दे पर बहुत सारे देखते भी हैं, लेकिन उनका कार्य देखते विक्रम लीलया, जब वे कार्य के क्षेत्र में कूद करके पड़ते हैं तब वे ऐसे पछाड़ दिए जाते हैं कि वे कहीं के भी नहीं रहते। वो स्टेज के ऊपर बोलते समय वक्ता के रूप में बड़ा अच्छा रहा होगा, लेकिन जब कार्यकर्ता के रूप में उसकी ओर देखा जाता है कि फेस, वो गायक के रूप में अच्छा रहा होगा, कलाकार के रूप में अच्छा रहा होगा, वो युद्ध के क्षेत्र में नहीं आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के सारे आयामों को जरा देखो, विक्रम लीलया, उनका हर कार्य पराक्रम से भरा हुआ है, उनके हर कार्य में आवेश है, लेकिन ये आवेश विवेकपूर्ण है। स्निग्ध स्मितेक्षितोदारैर् वाक्यैर् विक्रम लीलया नृलोकम रमयामास। इस भूमि के ऊपर उनका सारा व्यवहार कैसा रहा? रमयामास, लोगों के साथ उनका व्यवहार एक खेल की तरह रहा है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण बतलाते समय भगवान ने एक सुंदर लक्षण बतलाया है जो बड़ा गजब का है। यस्मान्नो दृजते लोको लोकान्नो दृजते चया, जिससे लोग उगते नहीं और जो लोगों से उगता नहीं। लोगों से न उगने वाला एक बात, और जिससे लोग उगते नहीं ऐसा। अब यहां उगने की बात नहीं है, जिसको देख करके लोग भी प्रसन्न होते हैं और लोगों से मिलकर के भी जो प्रसन्नता का अनुभव करता है। नृलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया। इस एक श्लोक को पढ़ने के पश्चात मुझे बहुत दिनों तक ऐसा लगता रहा कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इस एक श्लोक का भाष्य है। यह श्लोक उनके जीवन का सूत्र है, और इस दृष्टि से जब हम इन ग्रंथों को देखते हैं, मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत को और महाभारत को, तब ध्यान में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये सारी बातें कैसे कूट कूट करके नित्य भरी हुई है। जीवन की ये शैली, ये सर्वोच्च शैली है। हम उसका अनुसरण कितना कर पाएंगे, अनुकरण कितना कर पाएंगे, ये अपने अपने विवेक और अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर रहेगा। लेकिन यदि व्यक्ति को संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव से प्रभावित करना है और दुख दिए बिना प्रभावित करना है
और सबका कल्याण करते करते आगे ले जाना है, तो इसी प्रकार का व्यक्तित्व अपना होना चाहिए। इस प्रकार की आकांक्षा रखना यह अत्यंत आवश्यक बात रहेगी। He is a high personality. आध्यात्मिक दृष्टि से या दैवत शास्त्र की दृष्टि से मैं केवल नहीं बोल रहा हूं। उनकी आराधना की जाती है, उनकी भक्ति की जाती है, ये सारी बातें योग्य है, वे श्रेष्ठ भी है, लेकिन उनके जीवन को, उनकी जीवन शैली को एक मानवीय जीवन मान करके जब उनका चिंतन करते हैं, तब उनके कौन कौन से गुणों का अनुसरण करना आवश्यक है, कम से कम यह बात हमारे ध्यान में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्शवत जीवन रहा है, और प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा है कि अर्जुन, मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं कि मुझे देख करके अन्य लोग भी अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे। उत्सीदेयुर्वेलोका न कुर्यां कर्म चेदहम, उत्सीदेयुर्वेलोका न कुर्यां कर्म चेदहम, मैं कर्म नहीं करूंगा, बाकी लोग उनकी योग्यता न होने पर भी अपने कर्मों का त्याग कर देंगे। तो भगवान को भान है क्या सब के लोग मेरी ओर देख करके अपना जीवन यापन करने का विचार करते होंगे। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो प्रभु जब इस भान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका जीवन यापन है कैसा, और उनके जीवन यापन में से हम लोग ग्रहण क्या कर सकते हैं, ये तो अपने स्वयं के व्यक्तिगत चिंतन का विषय है। लेकिन एक बार उस हिमालय का दर्शन तो कर लिया जाए, एक बार उस महासागर का दर्शन तो कर लिया जाए, एक बार उस महामेरु का दर्शन तो कर लिया जाए, जिसकी तुलना अन्य किसी के भी साथ नहीं की जा सकती है। There's no other personality. You can tell me who is there. जिन्होंने मानव जीवन को इतना प्रभावित किया है और इतनी गहराई के साथ प्रभावित किया है, तो आइए उनका चिंतन करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग श्रीमद् भागवत का आधार लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण की जो लोकप्रियता है, वो तो उनके लीलाओं के माध्यम से बाल्यकाल से ही हम लोगों को दिखती है। भगवान श्री कृष्ण की लीला यह सर्वाधिक लोकप्रिय लीला है, लेकिन उनके शैशव की उन सारी लीलाओं को मैं अभी यहाँ स्पर्श करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बाल लीला के रूप में वे सारी हम लोगों के लिए आदर के विषय तो है, लेकिन ऐसा भी तो माना जा सकता है कि ये बाल्यकाल की बातें हैं। मनुष्य सोच करके जब अपने जीवन का यापन आरंभ करता है, उस समय उसके किस प्रकार के, देखो एकदम से मुझे याद आ गया, छत्रपति संभाजी महाराज को समर्थ रामदास स्वामी ने पत्र लिखा छत्रपति शिवाजी महाराज के देहावसान के पश्चात, और उन्होंने यह लिखा कि देखो, आपको बहुत ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपने पिताश्री को याद करने की आवश्यकता है। शिवरायास 8वां में बस शिवाजी महाराज को तुम याद करते रहो। शिवराया से 8वां में चालने, शिवराया से 8वां में बोलने, शिवराया से सलगी देने कैसे से, शिवराया से 8वां प्रताप, शिवराया से 8वां साक्षी। और बाद में क्या कहा, चाहूनी करा में विशेष तरित मना में पुरुष। केवल 8वां ऐसा नहीं कहा, केवल याद करो ऐसा नहीं कहा, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, और उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया उससे भी अधिक आप क्या कर सकते हैं, इसका विचार। मनुष्य के जीवन के उन्नयन के लिए उसके सामने कोई कोई रोल मॉडल होना आवश्यक होता है, एक आदर्श होना आवश्यक होता है। केवल सिद्धांतों से आदमी नहीं बनता है, केवल सिद्धांतों का विचार रोज रोज नहीं किया जाता है। सिद्धांत अपने स्थान पर होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत मूर्त रूप लेकर के जिसके भीतर समाविष्ट हुए दिखते हैं, अपने आप में हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं।
धर्म का पालन करना है ना। हमारी परंपरा ने कहा काहे को ग्रंथ पढ़ते हो, नहीं पढ़ना है तो पढ़ो, ग्रंथ तो पढ़ने चाहिए, लेकिन ग्रंथ पढ़ने यथार्थ भी हो सकते हैं यदि आप श्री राम को जानते। रामादिवत वर्तितव्यम, रामो विग्रहवान धर्म, राम की ओर देखो, धर्म अपने आप आपके जीवन में उतर आएगा। राम जैसे बनने का प्रयास करो, धर्म आपके जीवन में अपने आप उतर आएगा। यह जो कहा जाता है, यह अपने जीवन को तराशने के लिए कहा जाता है। अपना जीवन उस प्रकार का कुछ मात्रा में भी तो बने, इसलिए कहा जाता है। भगवान श्री राम के बारे में सत्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सत्य है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह सत्य है। तो उस सुंदर जीवन का थोड़ा चिंतन हम आरंभ करते हैं, उनके थोड़े से बाल्यकाल से, बचपन से ही भगवान कैसे, उनके खेल का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया वो केवल अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि भगवान कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा, अरे कृष्णा मेड प्लेस डिवाइन। भगवान श्री कृष्ण ने खेल को भी आध्यात्मिक स्वरूप दे दिया। वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज, केचित् वेणून् वादयन्तो ध्मान्तशृङ्गानि केचन, केचित् धुङ्गैः प्रगायन्ता पूजन्तः कोकिलैः परैः। अपने मित्रों को साथ लेकर के भगवान अनेक प्रकार के खेल खेलते समय क्वचित् गायति गायत्सु मदान्धान्, क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम्, मेघगम्भीरया वाचा नृत्यन्तो गायत क्वापि आत्मनो युद्धतो मिथा। छोटे छोटे बालकों के साथ भगवान अत्यंत आनंद के साथ खेल खेल रहे हैं। आपने संसार में कहीं तो भी खेलने वाला भगवान सुना है? एडमिनिस्ट्रेटर गॉड आपने सुना है, पॉटर गॉड आपने सुना है, गॉड एज ए मोनार्क आपने सुना है, अ गेमसन गॉड आपने कहीं सुना है? भगवान श्री कृष्ण का छोटे छोटे बालकों के अंतःकरण में जो स्थान है ना, आज भी आप जाइए, छोटे बालकों से पूछिए आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, दो ही नाम आपके सामने आएंगे मोस्टली, एक तो कृष्ण भगवान और एक हनुमान जी। बच्चों को कृष्ण भगवान बड़े प्रिय लगते हैं और हनुमान जी प्रिय लगते हैं। अब हनुमान जी तो उनके शौर्य के कारण, उनकी लीला के कारण लगते ही लगते हैं। कृष्ण भगवान नृत्यन्तो गायत क्वापि वल्गन्तो युद्धतो मिथा, गृहीत हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। भगवान गोपालों के साथ खेल रहे हैं और इतना पूरा मन लगा करके खेल रहे हैं। और खेल खेल में जब भोजन के लिए बैठते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अपने गोपाल बालकों के साथ जो भोजन का प्रसंग है, और तो और भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने उनके प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में एक बात कही है कि और कोई ध्यान आप करें चाहे न करें, लेकिन भगवान के इस भोजन का ध्यान अवश्य करें। इट्स वंडरफुल। कैसा है भगवान का यह भोजन का प्रसंग? इतना प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय की शाखाओं में उनके किसी भी कार्यक्रम में काला का कीर्तन हुए बिना कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और काला का कीर्तन करना होता है तो उसमें इस प्रसंग का वर्णन करना अनिवार्य है। आपने ज्ञानेश्वरी सप्ताह किया, अंत में काला का कीर्तन होगा, उसमें ये गाना अनिवार्य है, उसमें इस प्रसंग का वर्णन करना अनिवार्य है। भगवान स्वयं इसमें अपने बालकों के साथ भोजन के लिए बैठते हैं और बिभ्रद वेणुम जठर पटयो शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणु मसृण कवलम
तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिस्फुरुदो हासयन् नर्मभिस्वैः हासयन्तः। मंडलाकार पंक्ति बैठी है, भगवान मध्य में है, भोजन करते करते उठ करके खड़े हो गए हैं, दही भात का गोला है और उंगलियों में कई चटनी है, कई अचार है, कई मिर्च लगी हुई है। एक एक केवल ग्रहण करते हैं, थोड़ी चटनी चखते हैं, मुंह में पानी मत छूटने देना। और पंक्ति में घूम घूम करके अपने हर मित्र के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। हासयन् नर्मभिस्वैः, इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। भगवान हंसाते हैं, स्वयं हंसते हैं। बच्चों के साथ खेलते समय भगवान कभी कभी घोड़ा बन जाते हैं, उनको पीठ पर लेना पड़ता है तो लेकर के दौड़ते हैं। मुख्य बात ये सब देख करके सब व्यामोहित हो जाते हैं, देवता भी। फिर ये क्या है? और इस प्रसंग में मैं कथा कहने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बात कही, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे गोकुलवासी कितने भाग्यवान हैं कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करता, उनके साथ इतनी सहजता से खेलता है। भगवान वेद कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के सखा है। द्वा सुपर्णा सुविजा सखा है। अब सखा जब कहा तो सखा केवल कहने के लिए है कि कथा कि सखात्व उनका प्रमाणित करने के लिए। अब ये मैत्री प्रमाणित करनी होगी तो मित्र व्यवहार करके दिखाना पड़ेगा ना। भगवान का यह आचरण सभी के साथ इतना मैत्रीपूर्ण है, इसका परिणाम क्या होता है पता है? क्यों भगवान ने सभी के अंतरंग में अपना स्थान निर्माण किया? वो कैसे करता है? तीन बातों को जानना आवश्यक होता है, तब जीवन में सच्चा परमार्थ उतरता है। पहली बात, परमात्मा का प्रभाव कितना है। भगवान प्रभावी नहीं होंगे, आप भगवान को भी नहीं पूछेंगे। पहली बात प्रभाव जानना होता है। दूसरी बात, प्रभाव बहुत बड़ा है वो तो ठीक है, ही इज ग्रेट बट ही इज अनअप्रोचेबल, ये गड़बड़ हो जाती है। तुका बने सोपे वैकुंठासी जाता, रामकृष्ण कथा हेची बाट। संत तुकाराम महाराज कहते कथा के बिना आप भक्ति को सरल बना ही नहीं सकते। क्यों? भक्ति में चित्त एकाग्र करना होता है, रस के बिना चित्त एकाग्र नहीं होता है। कितना भी ध्यान करने का प्रयास करो, रस आना चाहिए। रस आना है तो जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं उसके बारे में मेरे अंतःकरण में एक विलक्षण प्रेम प्रवाह निर्माण होना चाहिए। और वो तब होगा जब उसका प्रभाव ध्यान में आएगा। प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सृष्टि करता है सोके, लेकिन भाई उनसे मिलेंगे कैसे? कोई बड़ा प्रभावी व्यक्ति है, आप उसके बारे में आदर रख सकते हैं, आप उसके बारे में महानता का भान रख सकते हैं, लेकिन वो दूरी बनी हुई रहती है। ये दूरी समाप्त कैसे होगी? ये उसके स्वभाव से होगी। भगवान श्री राम की विशेषता वे द्वंद्व भंग करते हैं ये नहीं है,
वे रावण के साथ युद्ध करके उसको समाप्त करते, ये नहीं है, वो तो है ही, लेकिन इतना महान वह प्रभु एक शबरी के आश्रम में जाकर के उसके पास प्रेम से बैठ करके बेर भी खा सकता है, और एक जटायु के मृत्यु सम्मुख पड़े हुए जटायु के मस्तक को एक गिरद्र के मस्तक को अपनी गोदी में लेकर के उसके लिए 2 आंसू डाल करके उसका अंत्येष्टि संस्कार कर, ये करुणा है, ये स्वभाव की कोमलता है। प्रभु का प्रभाव जानना चाहिए, प्रभु का स्वभाव जानना चाहिए। प्रभाव से महान लेकिन स्वभाव से कोमल, इतने से भी काम नहीं होता। हाउ ही इज रिलेटेड टू मी, तब जाकर के मेरा उनके साथ मेल होगा। प्रभाव अच्छा है, स्वभाव भी कोमल है, अच्छा है, लेकिन मेरा उनका क्या संबंध है, पता ये चलना पड़ता है कि मेरा उनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। और ये संबंधों की घनिष्ठता जो खेल में व्यक्त होती है वो अन्य किसी प्रकार में व्यक्त नहीं होती है। इसलिए ये गोपालों की लीला, ये गोपालों की क्रीड़ा किसके साथ है? परब्रह्म तत्व के साथ है। इतना सरल प्रतिपादन किसी का भी नहीं किया जा सकता है। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भगवान अत्यंत क्रीड़ा प्रिय है, सबके साथ प्रभु ने सर्वदा, प्लीज रिमेंबर, सबके साथ प्रभु ने सर्वदा समानता का व्यवहार किया। वे भगवान होकर के लिए बैठे थे। कृष्ण भगवान के जीवन काल में वे भगवान के रूप में कहीं बैठे हैं, उनकी पूजा की जा रही है, ऐसा केवल 2 बार वर्णन आता है जो एक्सेप्शनल है और जबरदस्ती किया गया है। एक प्रसंग गोकुल का है जो देवताओं ने पूजा की, और दूसरा एक ही प्रसंग केवल है जब सहदेव ने वर्णन किया कि हमारे ऊपर सर्वाधिक उपकार कृष्ण के है, इसलिए राजसूय में उनकी अग्र पूजा की जाती है। 125 वर्ष के कालखंड में भगवान का पूजन केवल 2 बार है, बाकी सब खेल रही है, और वो समानता के धरातल पर है। कहीं पर भी भगवान किसी को भी दूर रख करके अपने से छोटा मान करके व्यवहार करते ही नहीं है। एंड दैट ल्यूर्स पीपल, दैट अट्रैक्ट्स पीपल। लोगों के ध्यान में आता है, अरे नाम तो इनका इतना बड़ा सुना था, इनका व्यवहार कितना सरलता का है, और उसके कारण अपने आप लोगों के अंतःकरण में आपके लिए प्रेम का एक अकाउंट खुल जाता है। ये शब्द कैसे आ गया पता? मैंने स्टीफन कोवी की पुस्तक में एक शब्द पढ़ा था, बड़ा सुंदर से, इमोशनल बैंक अकाउंट। हम सभी के अकाउंट तो होते हैं बैंक में, बैंक के अकाउंट हम लोगों को पता है, और उसमें जितना हम भरते हैं उतना ही हम पाते हैं। थोड़ा ब्याज के रूप में अधिक आ जाता होगा, अच्छी बैंक होगी तो। लेकिन वापस पाने के लिए भरना पड़ता है। 5000 वर्षों तक सारा विश्व मुख्य रूप से कृष्ण के साथ इतना प्रेम क्यों करता है? क्योंकि कृष्ण ने सभी के अंतःकरण में अपना इमोशनल बैंक अकाउंट खोल करके रखा है, उस प्रेम से रखा है। सबके साथ उनका इस प्रकार का व्यवहार। समानता के धरातल। अर्जुन रोया, अर्जुन गिड़गिड़ाया, भगवान ने क्या कहा? भक्तवाद में कहा अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। अर्जुन तुम मेरे सखा हो। और जब वे अपने सखाओं के साथ बात भगवान करते हैं ना, तो चाहे वे अब ये बचपन के जो मित्र हैं उनके साथ भगवान कैसा खेल खेलते हैं,
इसका तो सुंदर वर्णन आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा, जो कि अद्भुत वर्णन है। लेकिन बाद में भी आप, चाहे उद्धव जी है, चाहे सात्विकी है, चाहे सुदामा है, चाहे अर्जुन है, जब भी बात किसी के साथ करेंगे, गृहीत्वा पाणिना पाणि, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के सो इजीली ही टॉक्स ऑन इक्वल लेवल। और ये बात है ना, केवल कृष्ण के साथ हो सकती है, राम जी के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी राजा है, देयर इज सम डिस्टेंस। कृष्ण राजा इसीलिए शायद नहीं बने। कृष्ण मेड प्ले डिवाइन, और इसलिए वे सबको अपने अपने लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं। बाल्यकाल से भगवान की कार्य पद्धति कैसी है? वे जब 7 वर्ष के हैं, गिरिराज गोवर्धन के लीला के प्रसंग आप लोग जानते होंगे, मैं प्रसंगों का वर्णन नहीं करूंगा। उनमें केवल उनके स्वभाव की विशेषता कहां इतना दिखा दूंगा। गिरिराज गोवर्धन की पूजा जब भगवान ने करवाई, इंद्र की पूजा बंद करवा करके करवाई, उस समय प्रभु ने एक छोटा सा भाषण किया। भगवान अपने समय के सर्वोत्तम वक्ता थे। अपने समय के इसका अर्थ ये भी उनका समय है, उस समय से लेकर आज तक उनके जैसा वक्ता हुआ नहीं है। यस, आई एम टेलिंग द फैक्ट। और ये मैं इसलिए बोलता हूं कि गत 100 वर्षों में जिनको मैं हमारे देश का सर्वोत्तम वक्ता मानता हूं, वे स्वतंत्र वीर सावरकर, वे स्वयं लिखते क्या है, मैंने अपने वक्तृत्व का अभ्यास जो आरंभ किया वो भगवान श्री कृष्ण के उद्योग पर्व के भाषणों को याद करके किया। कृष्ण मेरे गुरु है वक्तृत्व में। ये जब सावरकर जी कहते हैं तो कृष्ण क्या है? समय मिला तो उन भाषणों को थोड़ा हम लोग अवलोकन करेंगे। लेकिन बाल्यकाल में भगवान ने जब इंद्र की पूजा करने की बात चली तो एक छोटा सा भाषण किया। अब वो छोटा सा है, बड़ा सुंदर है, उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक बात ध्यान लगा करके दी गोपों की, प्रस्थापितों की पूजा आप कर रहे हैं, अब प्रत्यक्ष देवताओं की पूजा आप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देवताओं की पूजा क्यों नहीं कर रहे? सारी बात है, कोई राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जाता होगा, जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन घर में अपने पिताजी के साथ झगड़ा करके जाता होगा तो क्या करना? माता पिता को कष्ट दे करके, उनको दुख दे करके, अथवा अपने बापावरती केस करून, मुद्दा मराठीत बोललो सगळ्यांना कळू नये म्हणून, जर कोणी गेला अयोध्येला तर आमचा रामलला त्याला बघून डोळे मिटून घे, तू जा बेळगावला। सगळं कीर्तांची धुरे जी का माता पिता। राम जी की पूजा नहीं करना ऐसी बात नहीं है, देवताओं की पूजा नहीं करना ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष देवता जो माता पिता है उनका आदर पहले करो, बाद में बाकी देवताओं को। ये जैसे ध्यान में आता है, भगवान ने ये ध्यान में ला करके दिया। और बतलाए, तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मका य इंद्रयाग संभारा स्थैर्यं साध्यताम मका। हमारे वैष्णव में गिरिराज जी की पूजा करने की पद्धति है, 56 भोग का नैवेद्य अर्पण करते हैं, गिरिराज धर्म की जय बोलते, अन्नकूट करते हैं, प्रसाद पाते, घर पर जाते हैं। हमने कृष्ण के विचारों का चिंतन नहीं किया। At the tender age of 7, what is telling the whole society? भगवान ने कहा, पिताजी ये सब ठीक है, आप लोग पूजा कर रहे हैं,
लेकिन गौ माता की सेवा करना, गाय प्रत्यक्ष देवता है, संस्कार देने वाला वेदपाठी ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता है। पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसका प्रतीक है गिरिराज। और प्रभु के वाक्य सुनिएगा, इतना बड़ा अन्नकूट करके सारा प्रसाद हम क्या करेंगे? भगवान ने कहा हमारे ब्रजमंडल के चांडालों के बालकों तक बांटेंगे। कहाँ है भगवान का ध्यान? एक और वेदपाठी पंडितों की ओर है तो दूसरी ओर चांडालों के बालकों की ओर है। ये सामाजिक समरसता। अन्येभ्यश्चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथारथा यवसंच गवान् दत्वा गिरये दीयतां बलि। प्रभु का यह 4 मुद्दों का सामाजिक क्रांति का शंखनाद है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा। अब गौ माता के लिए भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी कलकत्ता में 3 गो भक्ति कथा, गाय का महत्व हम जानते हैं। ऐसे ही गाय हमारी केंद्र स्थानीय पूजा मूर्ति नहीं बनी, वो हमारे अर्थशास्त्र का आधार रही, धर्मशास्त्र का आधार रही। ऐसे ही नहीं रही। एक वाक्य बोलता हूं, समाप्त करता हूं, अगला बहुत कुछ बोलना है। What's a cow? I describe her as a mobile temple as well as a mobile hospital. एक गाय में आपको चलता फिरता दवाखाना भी मिलेगा और चलता फिरता देव मंदिर भी मिलेगा। उसे कहते गाय, गो माता। सारे के सारे रोगों को दूर करने की क्षमता उसमें है और सारी पवित्रता प्रदान करने की क्षमता पंचामृत में और पंचगव्य में है। भगवान ने कहा बाबा पहले गो माताओं की रक्षा, वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा। वेद बचेंगे तो धर्म बचेगा। फिर कहते पर्यावरण की रक्षा। आज हम क्या कर रहे हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग को हम क्यों इस प्रकार झेल रहे हैं? हमने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया। और जब पानी हमारे ऊपर से बहने लग गया तब सब जगह चला है वृक्ष लगाओ, पर्यावरण की ओर ध्यान दो। लेकिन हमने काटे क्यों? हमने इतने पर्वत तोड़े क्यों? हमने इतना प्लास्टिक निर्माण किया क्यों? देश की एक भी नदी का पानी पीने जैसा नहीं आज। पर्यावरण की रक्षा। तस्मात् गवां ब्राह्मणानां अद्रेश्चारभ्यतां मका इंद्रयाग संभार स्थैर्यं साध्यताम् अन्येभ्यश्चाश्व चांडाल। चांडालों के बालकों तक अपना प्रसाद जाना चाहिए। ये सामाजिक समरसता भगवान ने जो कही उसको यदि हम अमल में लाते तो ध्यान रखना हमारे देश में ये धर्मांतरण का प्रश्न खड़ा नहीं होता। जिन समस्याओं के साथ देश आज जूझ रहा है वो समस्याएं निर्माण नहीं होती। हमने कृष्ण की पूजा बहुत की, कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं किया। डॉक्टर एनी बेसेंट का एक वाक्य मुझे बहुत वर्षों से अत्यंत प्रिय है। मैंने उस वाक्य का बहुत विचार किया है। डॉक्टर एनी बेसेंट ने लिखा, द फॉल्ट लाइज नॉट विद हिंदुइज्म, द फॉल्ट लाइज नॉट विद हिंदुइज्म बट विद द हिंदूज दैट दे हैव नॉट केप्ट इट। गलती धर्म की नहीं है, इस धर्म का पालन न करने वाले आप लोगों की, हम लोगों की है। हमने उसका यथावत पालन नहीं किया। अब प्रभु ने सिद्धांत के रूप में सब बात रख दी। भगवान की एक शैली बतलाता हूं। इतना सब प्रभु ने कहा, भगवान अपनी एक भी बात लोगों पर लादना नहीं चाहते। मैंने कहा आपको सुनना चाहिए, ऐसा भगवान कभी नहीं कहते।
गीता का वाक्य तो आपको पता है, विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखो अर्जुन, मुझे जो बतलाना चाहिए था वो मैंने बतला दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। यहां पर भगवान क्या कहते हैं अपने पहले भाषण में, इट्स इज मेरन स्पीच, ये पहला भाषण है, उसका लास्ट वर्ड क्या है, अंतिम वाक्य क्या है? भगवान एतन् मम मतन्तात, एतन् मम मतन्तात क्रियताम यदि रोचते, यदि रोचते क्रियताम, यदि न रोचते मा क्रियताम। अत्यंत प्रभावी ढंग से अपनी बात को पूरा रख दिया, उसको पूरा आप कैसे कर सकते ये समझा दिया, और फिर कहा कि मेरा जो प्रामाणिक मत है मैंने आपके सामने रख दिया बाबा, अब आपको जो जचता है वैसा करो। क्रियताम यदि रोचते, he sets us liberal, आप जो चाहे कर सकते हैं। भगवद गीता के अंत में यही कहा, हर भाषण के अंत में यही कहा। एक बात और बता दूं, उनके भाषण की शैली, तो जब वो गिरिराज जी की पूजा करने की बात उन्होंने कही तो गोपियों ने पूछा कि श्याम, ये जिस यज्ञ का वर्णन आप करते हैं उसमें हमें क्या काम करना, कुछ हमारे लिए भी कुछ काम? भगवान ने कहा सबसे ज्यादा काम तो आपको करना। अच्छा क्या करना है? भगवान ने कहा अरे इतना बड़ा, जब मैंने कहा कि कूट जैसा अन्न, अन्न कूट का अर्थ होता है, कूट का अर्थ है पर्वत शिखर, पर्वत शिखर जैसा अन्न सामग्री का निर्माण। अब आपके बेलगांव में क्या होता मुझे पता नहीं है, लेकिन काशी में विश्वनाथ बाबा के अन्नकूट में हमने देखा है एक लड्डू कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5 किलो का होना चाहिए। यह अभी भी वैसा ही होता है। आप बाबा का अन्नकूट जाकर के देखिए, पर्वतप्राय अन्न निर्माण। तो यहां का मुद्दा क्या है? भगवान ने कहा इतनी जब सामग्री तैयार करनी है तो रसोई कौन बनाएगा? गोपियों को अच्छा नहीं लगा, जिथे जाओ तिथे हेच काम, रांधा काढा पुढे उष्टी काढा। अपने आप ही गोपियों को लगा इससे में यही काम आता है। भगवान ने कहा मेरी बात पूरी तो सुनते नहीं आप। देखो कृष्ण भगवान तो क्या क्या पूरी बात क्या है? भगवान ने कहा रसोई तो आपको करनी है, रसोई तो आप ही बनाएगी, लेकिन उसके पश्चात आपको पता है हमारे इस कार्यक्रम में भगवान ने मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया है यहाँ पर। हाँ, इस कार्यक्रम में आपको परिक्रमा में चलना है और यह परिक्रमा शोभा यात्रा के साथ होगी और उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया वस्त्र धारण करने हैं। मैं देखने वाला हूं और सारे के सारे अलंकार धारण करने हैं सब, और फिर शोभा यात्रा में चलना है। अलंकार धारण करके लोगों के सामने आने का अवसर मिले, इससे अधिक हमारी माताओं को और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सारे अलंकारों का सार्थक्य इस बात में होता है, यदि आपका कंठा देख करके किसी ने पूछा कहां से लिया जी? गंगे घोड़ा मेरे मन की बात नहीं, यहां का पढ़ रहा हूं। स्वलंकृता सुअलंकृता, स्वलंकृता भुक्तवंता स्वनुलिप्ता। अरे एक बात तो मैंने भूल गया मैं, भगवान ने कहा बढ़िया से बढ़िया मेकअप होना चाहिए। अरे यहां है ना,
स्वलंकृता मुक्तवन्तः सुअनुलिप्ता सुवाससा सुवाससा सुअनुलिप्ता सुअलंकृता। और बीच में कहीं थकान नहीं आ जाए, इसे भुक्तवंता, थोड़ा खा पी करके चलना है। गिरिराज जी की परिक्रमा बड़ी है। प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानल पर्वतान। अरे सारी की सारी गोपियां एकदम तैयार। द जॉब मस्ट बी मेड एंजॉयबल। कोई भी काम सौंपना हो, उस काम में आदमी को रस आना चाहिए। और ये सजना धजना चलना शोभा यात्रा में घूमना, ये सुन करके तो गोपियां बाग बाग होना चाहिए, फिर कोई भी काम बड़ा नहीं लगता है। ये कृष्ण की विशेषता है, ये प्रभु ने किया। अच्छा चलो, ये सब हो गया गिरिराज जी की पूजा। How he behaves, just see. इंद्र की पूजा बंद हो गई। परिणाम क्या हुआ? इंद्र क्रुद्ध हो गया। केवल चिढ़ा नहीं, इंद्र ने देवताओं के सामने कृष्ण भगवान को गालियां दी। मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अपशब्द ही है ये सारे। चिढ़ करके इंद्र ने क्या कहा कृष्ण भगवान के बारे में? वाचालम बाल। इंद्र को रोष आया, कृष्ण का नहीं आया। कृष्ण को तो वो रोष करने जितनी भी पात्रता देना नहीं चाहता है। अरे 7 वर्ष का छोरा बिना किसी अकल का, उसकी बात को सुन करके बूढ़े बूढ़े गोपों ने मेरी पूजा को रद्द कर दिया। ये क्या? ये 7 वर्ष का छोरा यानी कृष्ण, और वो कृष्ण कैसा? गालियां सुन लो। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। ये सारी की सारी गालियां, और ये गालियां इंद्र ने कृष्ण के लिए देवताओं के सामने दी। स्तब्धम, अकल तो उसको है नहीं, जड़ बुद्धि, लेकिन अपने को मानता बड़ा पंडित है, अहंकारी। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम। मुझे बतलाना क्या है? ये इंद्र की अकड़ है, ये इंद्र का अहंकार है। अब इसके पश्चात इन्होंने जो किया वो लीला के प्रसंग है, मुझे कथा नहीं कहनी है। उसके पश्चात इंद्र ने वहां पर वर्षा की और गोकुल को बहाने का प्रयास किया। इंद्र कुछ नहीं कर पाया। प्रभु ने गिरिराज जी को धारण करके इंद्र के अहंकार को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात इंद्र भगवान की शरण में आया। See how he behaves. देवताओं के राजा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके 7 दिन की वृष्टि करके गोकुल पर धावा बोल दिया, प्रलय करना चाहा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। एक पेड़ नहीं गिरा, एक पत्ता नहीं टूटा किसी लता का, इतना गोकुल सुरक्षित रहा। इंद्र का अहंकार चूर हो गया और बाद में एकांत में आकर के इंद्र भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। मुकुट उतार करके इंद्र ने भगवान के चरणों में कर दिया, साष्टांग प्रणाम कर दिया। मेरी गलती हो गई। ये वो इंद्र है जिसने इतनी गालियां दी। भगवान चाहते तो वो चाटे धर सकते थे, गालियां तो दे सकते थे। कृष्ण की विशेषता देखो, भगवान के मुख में गालियां देने वाले इंद्र के प्रति भी एक भी अपशब्द नहीं।
उसकी ओर देखा और क्या कहा, चाहो तुम्हारा भी कल्याण हो। उसके पहले क्या कहा मैं बतलाता हूं बाद में, लेकिन गम्यताम शक्र भद्रम वह, एक भी अपशब्द नहीं, केवल तुमने इतना ही कहा, अपनी मर्यादा में। गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेरु शासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु विहे। ये क्या भगवान हम लोगों को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। इन्होंने गलती की, ये बात सत्य है, यह प्रमाणित है। मेरी ऑफिस का ऑफिस चीफ यदि कोई गलती करता है और यदि उसके जूनियर्स के सामने मैं उसको डांटता हूं और मैं भी उसको गालियां ही दे देता हूं, तो बाद में उसका ऑफिस में काम करना संभव नहीं। ध्यान रखना, उसको मर्यादा में भी रहना चाहिए, लेकिन उसको अपमानित करके छोड़ना भी नहीं चाहिए। कैसा बैलेंस भगवान रख रहे हैं। मुझे एकदम एक याद बात आ गई, इसलिए बोलता हूं। भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन जो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में किया गया है, भगवान श्री राम के बारे में क्या बोलते हैं। भगवान श्री राम उनके लिए अपकार करने वालों उनको क्षमा कर देते हैं, ऐसा नहीं कहा है। अयोध्या के लोगों की चर्चा वहां पर दी गई है। अयोध्या के लोग बोलते हैं भगवान क्षमा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। शतानाम आत्मवत्तया न स्मरत्यपकाराणाम न स्मरति अपकाराणाम शतानाम आत्मवत्तया। किसी ने मेरे लिए अच्छा कुछ किया उसका तो भगवान लोगों के सामने वर्णन करते हैं, लेकिन किसी ने मेरे लिए बुरा किया क्षमा नहीं करते। व्यक्तिगत रूप में उनके लिए कुछ किया होगा, भूल जाए। Forgiving is much better than, forgetting is much better than forgiving. भूल जाए। चित्त को शुद्ध रखना है तो इन अपराधों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम क्षमा भी करते हैं ना, क्षमा करने के बाद एक अहंकार का ट्रेस रह जाता है। उसने तो मेरे लिए ऐसा किया था लेकिन मैंने छोड़ दिया, उसने तो ऐसा किया था। अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि लोगों के ऐसे सारे अपराधों को भूलते जाते रहेंगे तो अगले काम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे। कुछ भी किया भूल गए, कुछ भी किया भूल गए। नो, नॉट दैट। अब विषय छिड़ गया। मुझे जी कृष्णमूर्ति की एक बात याद आई। कृष्णमूर्ति ने एक बात बड़ी सुंदर वे कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, फैक्चुअल मेमोरी एंड साइकोलॉजिकल मेमोरी। You must not forget the facts, but your psyche must not be affected by those things. इस बात को समझते थे। देखिए, किसने क्या किया था ये आपको फैक्चुअली याद होना चाहिए, वैसा वो न कर पावे इसके लिए योजना भी होनी चाहिए, कि उसके कारण आपके मन के ऊपर कोई स्कार नहीं होना चाहिए। You must have a scarless mind. यह जीवन की कला है मित्रों। ये जीवन मुक्तों का व्यवहार होता है। इतना सारा बोला है वो इंद्र, और भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं उसको, क्योंकि वे जानते हैं ये मेरी सिस्टम का एक हिस्सा है। किसी भी प्रकार के व्यवस्था में एक हायरार्की होती है, उसमें हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान होता है, और यदि किसी भी एक
व्यक्ति को जो वैसे महत्वपूर्ण है अपमानित किया जाए तो शायद वो अंडर कंपल्शन आपका काम करता रहेगा, लेकिन मन में वो खटास रखेगा और चांस खोजेगा कब आपको इसी प्रकार से वो अपमानित कर पाए या आपके काम को बिगाड़ पाए। नो, ऐसा व्यक्ति संगठन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत श्रेष्ठ संगठक है, वे अपनी चेन को कैसे बिगाड़ेंगे? इन्होंने अपराध किया, इंद्र ना समझ है, मुझे भी ना समझ होना चाहिए। देखो भगवान का व्यवहार। कृष्ण भगवान ने कहा गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम। तुम सर्वे सर्वा नहीं हो, इतना ध्यान रखो। तुम निरंकुश नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी किसी का अंकुश है। यू कांट डिसरिगार्ड अथॉरिटीज। स्थियताम स्वाधिकारेषु। अधिकार शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ मर्यादा ऐसा होता है, राइट्स नहीं होता है। अपनी मर्यादा में रहो। देखो, मर्यादा यह भारतीय परंपरा का सर्वोत्तम शब्द है। एक मर्यादा के अंदर सब कुछ अच्छा होता है। मर्यादा लांघते ही बड़े से बड़े आदमी की भी गलती कही जाती है, उसकी भी एक मर्यादा है। और भगवान ने इतना ही कहा स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपनी मर्यादा में रहो। किस प्रकार भगवान सबको संभालते हैं। और ये कहा भद्रमा, तुम्हारा भी कल्याण। गुड पर्सन, जो कहना था वो कह दिया, मैसेज देना था वो दे दिया, इंस्ट्रक्शन भी दे दी, और तुम यार वेरी गुड पर्सन। लेकिन एक छोटी सी बात है, इतना संभालो। ऐसा कहने से बड़ा अपराधी भी पुनः अपनी बात में जुड़ जाता है, और यह सबके लिए करना पड़ता है। मया ते कारी मगवन मखभंगोनुगृह्णता। प्रभु ने इतना और कह दिया कि इंद्र याद रखो, मैंने जो किया ना तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम सोचो ऐसा नहीं करते तो क्या करोगे। मया ते कारी मगवन मखभंगोनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यम मत्यस्येन्द्र श्रिया भृशम। प्रभु का यह व्यवहार सभी को अनुकरणीय हो जाए ऐसा। यह तो हो गया मैनेजमेंट के बारे में भगवान ने। और तो रहना ऑफिस, कोई भी काम कैसे करना करवाना, वे कैसा करते थे। कभी कभी पारंपरिक हमारे पारिवारिक संबंधों में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग मैं आपको बतलाता हूं। सामान्यतया श्रीमद् भागवत कहने वाले भी लोग इस प्रसंग की ओर चलते नहीं हैं, लेकिन ये कृष्ण के अंतरंग की बातें प्रकट करने वाले प्रसंग हैं। अब एक स्थिति का विचार करो। कथा प्रभु को पता है सामान्यतया। आयु के 11वें वर्ष में भगवान गोकुल से मथुरा आए। मथुरा जी जब वे आए तो उस समय निश्चित ऐसा ही था कि 4 दिन के लिए धनुर्याग देख करके लौटेंगे। और आने के बाद स्थिति ऐसी हो गई, प्रभु ने तो उसका पारिपत्य किया, भगवान ने पारिपत्य का उसका कर दिया। अब उनको मथुरा जी में ही रहना है। उनके माता पिता वसुदेव जी और देवकी माता है, तो लौट करके नहीं जाना है। ऐसी स्थिति में इतना प्रेम करने वाले नंदादि गोप आए और प्रभु के मित्र भी साथ में आए। सारे गोकुल
वासियों ने कृष्ण के साथ कितना प्रेम किया है यह तो अब उन कथाओं को जो पढ़ते हैं जानते हैं उनको पता है, लेकिन यह प्रेम अपार अपार प्रेम करने वाले सभी साथ में आए हैं। उसमें पिताजी हैं नंद बाबा। इधर कंस का पानिपत्य हो गया, सारी परिस्थिति बदल गई। अब कृष्ण लौटने वाले हैं नहीं, 4 दिनों में लौटने वाले हैं ऐसी बात करके आए हैं और अब उनको अपने माता पिता के पास रहना है। और नंदादि गोपों को कृष्ण को छोड़ करके वापस लौटना है। ये उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। वे तो ऐसे ही आए थे कि 4 दिन कन्हैया के साथ जाएंगे, अब लौट आएंगे वापस, लेकिन अब कन्हैया लौटने वाला नहीं है। बात क्या हो गई? गोकुल से जो लोग आए थे वे लौटने का विचार ही नहीं कर रहे। अच्छा, नंद बाबा के लिए समस्या हो गई। अब इतने वर्षों के पश्चात भगवान कृष्ण अपने माता पिता के साथ रहने वाले हैं, तो नंद बाबा कैसे कहें कि तुम मेरे साथ चलो? अरे वसुदेव जी उनके मित्र हैं। See the psychological situation. अच्छा, नंद बाबा जाकर के यशोदा के सामने क्या कहेंगे? मैं कन्हैया को छोड़ करके आया। वो क्या मानेगी? अचानक इस प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थिति निर्माण हो गई। अब क्या करना चाहिए? अच्छा, जो साथ में आए मेहमान नंदादि गोप है, भगवान के सारे बाल सखा साथ में आए हैं। अच्छा, नंद बाबा इन सखाओं को कैसे बतावे कि अब कन्हैया अपने साथ लौटने वाला नहीं है? उनके लिए तो धक्का हो जाएगा। These are delicate situations. अब इसमें किसको आगे होना चाहिए? भगवान समझ गए। प्रभु स्वयं नंद बाबा के पास गए, जहां पर उतरे थे। अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुता संकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येद मूचतु। भगवान ने कहा, बाबा प्रणाम करके कहा, बाबा यशोदा मैया प्रतीक्षा करती होगी ना आप सब लोगों की। इतने दिनों तक नंद ने अपने आंसुओं को रोक करके रखा था। नंद ने कहा, मेरी नहीं बेटा, तुम्हारी प्रतीक्षा ज्यादा करती है। अब दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति को बाबा आप चले जाइए ऐसा कैसे कहना? यात यूयम व्रजन्तात। अपने हृदय को कठोर बना करके कृष्ण ने कहा, बाबा आपको लौट जाना चाहिए। ज्ञातीन वो दृष्टि श्याम। अपने गले लगा करके नंद बाबा कृष्ण को न ले जा सकते हैं न छोड़ सकते हैं। स्थिति यह है। ग्यारह वर्षों तक उन्होंने उनका पालन पोषण किया है। सारे व्रज का, सारे गोकुल का केंद्र कृष्ण है। यशोदा की भी तो प्राण है। इसलिए उसे छोड़ करके जाना भी आप।
अच्छा, 11 वर्षों तक वसुदेव जी और देवकी ने उनका वियोग सहा है, उसको अपने से दूर रखा है। 11 वर्षों के बाद कारागृह में इतने दिन काटने के बाद अपना कृष्ण प्राप्त हुआ है। देवकी माता की भावनाओं का विचार करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, उधर यशोदा क्या विचार करना चाहिए कि नहीं? यात यूयं मृयन्तात वयंच स्नेह दुखिता। स्नेह दुखिता, प्रेम मनुष्य को दुखी बनाता है। प्रेम आसक्ति है। यशोदा मैया की, गोपियों की, सारे ब्रजवासियों की कृष्ण में आसक्ति है। ये कृष्ण भगवान भी जानते हैं, कितना जानते हैं बाद में देखेंगे। लेकिन आज भगवान कहते हैं, बाबा आपको मां के लिए लौटना चाहिए। मेरी प्रतीक्षा वो करती है, मैं जानता हूं। बाबा मैं जल्दी आऊंगा। ज्ञातीन वो दृष्टु वेश्याम। आपको एक बात जाते जाते बतला देता हूं, भगवान कभी लौट करके नहीं जा पाए। How difficult it is। देखो, कठोर बंधनों को तोड़ना अनेक बार आसान होता है, कोमल बंधनों को तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। प्रभु ने सब अपने सखाओं और नंदादि गोपों को देने के लिए अनेक उपहार लाए। कोई उपहार लेने को तैयार नहीं। सभी को अपने हाथों से भगवान ने पहना है। कहा तुम्हें मेरा प्रसाद नहीं चाहिए, मेरी भेंट नहीं चाहिए, ये रखो ना, मैं तो आने वाला। कृष्ण भगवान अत्यंत कोमल भावनाओं के चितेरे भी है। उनकी संवेदनशीलता अत्यंत गहरी है, उनका तर्क अत्यंत कठोर है, उनका पुरुषार्थ परम प्रभावी है, लेकिन उनकी भावनाएं अत्यंत कोमल है। लोगों के लिए आपकी भावनाएं कोमल नहीं होगी तो आप लोगों को जीत नहीं पाए। यही प्रभु जब उद्धव जी को भेजते हैं गोकुल में, उद्धवा शांतवन कर जा या गोकुलवासी जनांसी। तो प्रभु के जो वाक्य है, आपको क्या बताऊं। इस प्रसंग की कितनी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, कैसे कैसे काव्य लिखे गए हैं, कितनी कितनी कोमलता उन काव्यों में है, लेकिन भगवान के एक श्लोक में उतना भर दिया गया जो सारे ग्रंथों में नहीं भरा हुआ होगा। सारे ग्रंथों का मैं सम्मान करता हूं, सारे के सारे ग्रंथ भगवान के इस एक श्लोक के अनुवाद के रूप में दिख जाते हैं। क्या कहा प्रभु ने उद्धव जी को वन में उद्धव जी को गोकुल में भेजते हुए, गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमाम। अनेक बार लोगों को ऐसे लगता है कि कृष्ण शुष्क है, कृष्ण लौट करके नहीं गए, उनके मन में क्या प्रेम नहीं। कैसा कृष्ण के अंतःकरण में गोकुल वासियों के लिए प्रेम है। गच्छोद्धव व्रजं सौम्य
पित्रोर्नो प्रीतिमावह। उद्धव भैया एक बात वो भूल जाओ, मेरे माता पिता वहां भी है रे। मथुरा में आ गए, शहर में रहने लग गए, इसलिए भगवान वसुदेव जी और देवकी माता के पुत्र कहलाने लग गए। इसलिए भगवान नंद यशोदा को भूले नहीं है। Don't forget them who are absent. उद्धव सबसे बुद्धिमान, और प्रभु ने उद्धव को भेजते हुए कहा, गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचय। और यहां पर वर्णन करते हुए भगवान गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं। तामन्मनस्का, एक शब्द सुनिए, तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा गता। तामन्मनस्का, उद्धव उनके मन में रात दिन मेरा ही विचार है। मत प्राण, कोई किसी के प्राण बने, इसका अर्थ क्या होता है? प्राण के गुणधर्म है भूख और प्यास। जिसको याद करते समय भूख की अनुभूति न हो और प्यास की भी अनुभूति न हो, वो मत प्राण होता है। तामन्मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त दैहिका। उनको देह की शुद्ध नहीं रहती। भगवान की याद आते ही अलंकारों को धारण करते समय गोपियां गलती करती है, रसोई बनाते समय गोपियां गलती करती है, गलती हो जाती है, वो याद आते हैं। मामेव दयितं प्रेष्ठं, प्रेष्ठ शब्द का अर्थ आप डिक्शनरी में देखिए, डियर मोस्ट, प्रियतम से भी प्रियतम। मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा। दूसरों की भावनाओं की यह संवेदना अपने भीतर जागृत न हो तो व्यक्ति या तो अज्ञानी कहलाएगा, मूर्ख कहलाएगा, या कृतज्ञ कहलाएगा। कृष्ण की विपरीत। इसलिए भगवान उद्धव जी को भेजते हैं। दूसरा भी कुछ उद्देश्य उसमें है, उसकी ओर मैं जाता नहीं, लेकिन ये कृष्ण का जीवन व्यवहार दूसरी ओर भगवान का सबके साथ हिल मिल करके खेल करके होने वाला है। भगवान आप लोगों को पता है प्रभु के अनेक विवाह होते, मुख्य विवाह 8 है। भगवती रुक्मिणी, भगवती सत्यभामा, भगवती जामवती, भगवती कालिंदी, भगवती मित्रविंदा, भगवती सत्या, भगवती भद्रा और भगवती लक्ष्मण। ये प्रभु के 8 विवाह हैं। और ये विवाह जो होते थे उस समय भी प्रभु के द्वारा किए गए, ये अनेक समूहों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये साधन था। हम लोगों को पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज के भी 8 विवाह हुए हैं। क्यों इतने किए गए? अरे
अकेले को इतना बड़ा आह्वान झेलना था, इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना था, तो अपना ब्रॉडबेस होना चाहिए, अपने आसपास अपने कोई मित्र तो मेरे साथ खड़े होने वाले होने चाहिए। ये विवाह, इसमें एक यह भी अत्यंत बड़ा उद्देश्य होता है। एक 16,000 जो भगवान के विवाह हुए तो प्रभु के द्वारा दिया गया एक सामाजिक प्रश्न का उत्तर है। समाज में समस्या खड़ी हो जाती है और यह समस्या उस समय नहीं, आज भी वैसे ही खड़ी है। नरकासुर ने 16,000 क्षत्रिय कन्याओं को बंदी बनाया है। कथा नहीं बतलाता हूं, प्रभु ने जाकर के उनको मुक्त किया। समस्या कहां खड़ी होती है, ध्यान दे दीजिए। परम पराक्रम से और पापी का नाश किया, इन कन्याओं को मुक्त किया। और प्रभु के वाक्य, प्रभु ने कहा कि आपके सबके घर पर लौटने की व्यवस्था की गई है, आपकी शिविकाएं तैयार। उन सारी राजकन्याओं ने कहा, हमने अपने मन से आपको पति के रूप में चुना है। भगवान उनके अंतःकरण की समस्या को जानते हैं। समस्या क्या है? अरे ये क्षत्रिय कन्याएं अब छूट करके घर पर जाना भी चाहेगी तो कहां जाएगी? सारे के सारे इनके परिवार वाले इनको लेंगे, ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी, आज भी नहीं है बहुत बड़ी मात्रा में। भगवान का दृष्टिकोण ध्यान दे लीजिए। बड़े कुछ समंजस माता पिता उनको ग्रहण कर ले, बाकी लोग यही कहेंगे कि भाई हमारा बहुत प्रेम है, हम तुम्हें चाहते, लेकिन हमने तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो हमारे नाम का क्या होगा, हमारे अन्य संबंधों के ऊपर उसका परिणाम होगा। आज भी यह स्थिति, कन्या विशुद्ध है फिर भी समाज आशंकित है, तो क्या होगा? सच्ची बात बताओ, मुझे तो ऐसे लगता है कि भगवान श्री राम ने एक अहल्या का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं पर वैसा प्रसंग आने से पहले ही उनको बचा लिया। तो सोचिए समाज में क्या क्या होगा, कहां जाती। दे रिक्वायर टेक्निकल मैरिज, और यह प्रभु ने किया। एक साहस किया सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए। सब पालकियां द्वारका में आई और he gave the declaration कि मैंने उनका स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण की इस दृष्टि को हम लोगों को जानना चाहिए। अब इतना बड़ा परिवार भगवान का हो गया तो प्रभु ने उसका वहन कैसे किया होगा? एक बार आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है। कभी कभी लग सकता है कि एक पत्नी हो तो भी कितनी माता हो। भगवान के साथ इतना बड़ा परिवार, कितना कोलाहल होता होगा, कितना सिरदर्द होता होगा, और कितनी बाम की बोतलें रोड लगती होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्रभु समर्थ है। भगवान भगवान है इसलिए समर्थ है ऐसा नहीं कहा। भगवान का स्वभाव कैसा है, किस कारण से भगवान असंख्य काम करके भी अपने को चिंता मुक्त रख सकते हैं, इसका गुण क्या है, इसका रहस्य क्या है? सुखदेव जी महाराज ने पूरा एक अध्याय इसके लिए बतलाया है, जिसको हम कल देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सदा सर्वदा योगतुसागणावा जे कारणी प्रेममाधा पडावा पेक्षु नको पूर्णवन्ता अनन्ता रघुनायका मा गणेशियाता जय जय रघुवीर ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಡನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಒಂದು ಅನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, 26ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.